This is episode 16 of Little Fixes podcast. सबसे पहले आई होप कि आप लोग सेफ हैं amidst all this coronavirus scare. Please stay safe. Please stay responsible. Next thing, आज का जो episode है, it is about mental health. Yes, it's a completely different topic जो भी अभी तक मैंने किया है. I think सारे episodes काफ़ी different होते आए हैं अभी तक and this is one of them. इसमें मैं बात करूंगी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर प्रियंका यादव से, जो आपको बताएंगी कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल वेल बीइंग. वो आपको ये बताएंगे कि इट्स नॉट अ टैबू, इट्स ओके टू टॉक अबाउट योर मेंटल इश्यूज एंड वील टॉक अबाउट टॉक्सिसिटी इन अवर रिलेशनशिप्स विच इज़ अ वेरी कॉमन इशू सबकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो हम बात करते हैं इसके बारे में एंड प्रियंका एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर सकते हैं. चलो फटाफट से सुनते हैं कि क्या कहना चाहती हैं प्रियंका. Welcome to Little Fixes podcast. Raw, real, and super fun chats with wonderful people. We discuss valuable ideas and provide guidance to enrich your life. Join us for relatable stories and practical tips for personal development. चाहे वो आपका करियर हो या फिटनेस, सोशल मीडिया ग्रोथ, फैमिली, सेल्फ केयर और भी बहुत कुछ. दिस इज मैत्री, सेलिब्रिटी स्टॉकर एंड योर होस्ट. हाय प्रियंका, वेलकम टू द शो. Hello, Mathri. Thank you for inviting me here. प्रियंका here is a doctor. She is a psychiatrist. अगर आप प्रियंका को नहीं जानते हैं तो मैं प्रियंका से बोलूँगी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. So, I am Dr. Priyanka Yadav. I am presently a practicing psychiatrist, consultant psychiatrist in Noida, and I am a life coach. Many people may be knowing me from Instagram as Bibs and Brains because I love to blog and I want to talk about issues that are related to mental health, and that's where we both also met. Yes. So, and I'm a mother. I'm a mother of a 3-year-old. Yeah, that's pretty much it. ओके. तो सबसे पहले प्रियंका हम ये बात करना चाहेंगे कि जो ये इश्यूज होते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, दे आर हाँ जी. कमिंग इन द मेन स्ट्रीम अभी. बट स्टिल मतलब जैसे अभी भी होता है ना कि किसी ने बोल दिया कि यार यू नीड हेल्प, तो मतलब अगर मैं भी किसी से बोल दूँ तो दे विल थिंक कि आई एम मेकिंग फन ऑफ देम, या शायद कोई मुझसे बोले तो मुझे लगेगा यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं. वी जनरली डोंट ओपनली टॉक अबाउट इट. तो ये जो टैबू Right. है इसके बारे में आपका क्या थॉट्स है? So, first of all, I'll accept that yes, stigma is there. But what I always tell my clients that don't focus on the problem, focus on the solution. So, if the stigma is there, we should work on removing it. So, that's when I started writing about mental health issues because everybody suffers from it and they are a part and parcel of life. Stress is a part and parcel of life. Difficult relationships are part and parcel of life. Parenting, motherhood, these are all like regular life issues. The only thing is that the stigma stops people from talking about it. But who are these people? These are us. So Yes. when my clients start improving, I ask each of them to please talk about your problems, and I write about the problems, my problems, as well as from my career. I try to talk about it. So slowly and steadily, awareness is coming. Many celebrities are talking about it. So it's much better than what it used to be. So I'll say let's just focus on solutions and talk about it. The more we talk about it, it's going to normalize in some time. यस, कई लोग कहते हैं कि इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है. इवन आवर मेड्स हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज, इवन वी हैव, एंड पीपल अबव अस आल्सो हैव इश्यूज, बट वी जस्ट थिंक कि ये कुछ नहीं होता है. इट डजंट मैटर, हमारे पास लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए. तो इसके बारे में क्या बात करना? Yeah, that's true. But मैं हमेशा बताती हूँ कि see, your mind is controlling your whole body. So the best thing that you can do for yourself is to have a healthy and happy mind. That's the best investment because the return of investment is much more than what you will be doing on your body. So it all starts from there. I think a healthy mind is extremely important for anything, for a relationship or for your career. तो अगर succeed
करना है तो सबसे पहले अपने माइंड पे काम करना चाहिए। यस यस, सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करना है और सबसे पहले अपने माइंड बिल्कुल। से स्टार्ट करना है। बिल्कुल। तो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक होती है, वो होती है हमारी रिलेशनशिप्स। राइट। एंड कुछ रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। कुछ हो हम्म। सकता है हमारे चाइल्डहुड से ही खराब हों, कुछ हमें बाद में मिलते हैं लोग, उनसे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो हम्म। आई विल यूज अ टर्म टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए। तो यस। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप टॉक्सिक? Okay. So, see, relationship is two people हम्म when they are coming together and interacting. हम्म तो जब दो लोग को के बीच में ये जो टॉक्सिसिटी है आ रही है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम दोनों लोगों में है। हम्म तो टॉक्सिस ये जो रिलेशनशिप्स जो आप कह रहे हैं कि टॉक्सिक हो जाते हैं या डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो हम्म उसका कारण ये है कि जो दो लोग हैं हम्म वो ठीक से रिलेशनशिप को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। सो आई ऑलवेज टेल, जब बहुत सारे मैरिटल थेरेपीज या आई से एवरीथिंग इज़ अ रिलेशनशिप। आपका जो बॉस के साथ है वो भी एक रिलेशनशिप है। यस। आपका जो बच्चे के साथ है वो भी एक रिलेशनशिप है। हम्म तो नॉट जस्ट द रोमांटिक रिलेशनशिप्स बट आपका जो मदर के साथ है दैट इज़ ऑल्सो रिलेशनशिप। तो यस। अगर वो टॉक्सिक हो रहा है यानी कि आपको उससे खुशी नहीं मिल रही है, राइट, हाँ। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बोथ द पीपल हैव टू वर्क। सो इट्स हम्म लाइक अ स्मॉल प्लांट। हम्म जब आप उसको पानी डालोगे और उसका ध्यान रखोगे, उसे धूप दिखाओगे, तो वो हम्म बहुत अच्छा ग्रो करेगा। वो पौधा बड़ा होके पेड़ बन जाएगा। हम्म बट अगर उसको नहीं ध्यान रखोगे तो वो मुरझा जाएगा। तो हर हम्म रिलेशनशिप वैसे ही होता है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और अगर वो मुरझा रहा है तो देन अगेन वर्क मोर ऑन इट एंड इट विल बी बेटर। So I think हम्म that is the reason that if you don't work on your relationships, हम्म then it becomes toxic. हाँ। अब जैसे मान लीजिए देयर इज अ किड लाइक Hmm. 3 year old, ठीक है, तो उसके Right. पेरेंट्स आर अब्यूजिव। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट Right. द फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड, बट True. व्हेन ही और शी इवेंचुअली ग्रोज अप, तो कहीं ना कहीं Right. दैट हर्ट्स हिम और हर। Hmm. तो इस Right. तरीके की रिलेशनशिप वी कैन से कि वन साइडेड टॉक्सिक रिलेशनशिप है। Mm, टू एन एक्सटेंट देखिए, जब जब तक कि वो 3 year old है हम्म तब तक हाँ हम बता सकते हैं कि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। यस, जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं हम्म वो आपका ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को चेंज कर देते हैं। हम्म बट जब आप एक एडल्ट बन गए हैं तो वो हम्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद पर वर्क करें वर्क करें। और उन चीज़ों को समझें और हम्म उन चीज़ों से बाहर आएं। और अगर हम्म नहीं आ पा रहे हैं हम्म तो हेल्प लें उस चीज़ को, उस चीज़ से बाहर आने की। जैसे भी तरीके की आपको हेल्प ठीक लगती है, बी इट अ साइकेट्रिस्ट और लाइफ कोच, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। देर इज़ नो टू वे अबाउट इट। क्या रिलेशनशिप्स वन साइडेड टॉक्सिक हो सकते हैं? तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होगा कि किसी एक ही इंसान की फॉल्ट है, लाइक इफ इट्स maybe the person is dependent on substances or हम्म maybe he's having some other issue, mental illnesses. But mostly I think it is both of them who need to work. हम्म और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं पर हम्म आप खुद पर काम करते हैं तो रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। तो बहुत हम्म बार जैसे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, सपोज खाली वाइफ आ रहे हैं और वाइफ थेरेपी में है, हम्म और जब वाइफ इम्प्रूव करने लगते हैं तो वो खुद बताते हैं कि जो उनको इनिशियली सेशंस में प्रॉब्लम थी अपने हस्बैंड्स के साथ, हम्म वो भी बेटर होती जा रही है जबकि हस्बैंड थेरेपी में नहीं है। अच्छा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंसान खुद पर काम करता है तो हम्म काफ़ी हद तक वो चीज़ों को बेटर तरीके से डील कर पाता है। हम्म और फिर चाहे द अदर पर्सन इज नॉट वर्किंग दैट मच, फिर भी कॉम्पनसेट हो जाता है। दो द बेस्ट इज दैट बोथ द पीपल वर्क इन द हम्म रिलेशनशिप, बट द क्रक्स इज दैट यू अलोन कैन ऑल्सो मेक अ रिलेशनशिप बेटर। हम्म सो एक्सेप्ट फॉर आई विल से इन वेरी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस जहाँ पे बिल्कुल ही नेग्लेक्ट है हाँ, जहाँ और पे वायलेंस है या वायलेंस है या बहुत हाई लेवल रिस्पेक्ट का ही नहीं अब्यूज है, है। हाँ हाँ, या एग्जैक्टली।
अदर देन दैट जो रोज़मर्रा के जीवन में आई थिंक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, दे कैन बी वर्कड ऑन. तो दोनों ही इंसान आई थिंक दे हैव टू वर्क. ओके, तो मेनली किस तरीके का आप अब्यूज देखते हैं जनरली रिलेशनशिप्स में? मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप आप किस किस तरह की देखते हैं आपकी प्रैक्टिस में? राइट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर एक्चुअली जो ज़्यादा ज़्यादा कॉमनली देखती हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल प्यारे से रिलेशनशिप्स होते हैं. दे बिगिन वेरी लविंगली, but somewhere down the line, especially as life happens and especially after kids, most of them report that the love is lost or the relationship is not the same. So that is the most common. After that, abuse, I think abuse I see mostly emotional abuse is more common than the physical abuse or the domestic violence. So that is another kind of problems जो देखते हैं. और तीसरा तो then it becomes severe that domestic violence है relationship में. मोस्ट कॉमन जो आपके पास लोग आते हैं वो मोस्टली कपल्स होते हैं, हाँ. और मैरिड होते हैं, जिसमें से कोई एक पार्टनर आपके पास आता है. हाँ, अक्सर women. अच्छा, मोस्टली क्योंकि वुमेन. mostly women, क्योंकि आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी जो हमारी है कि it's easier to say कि women has to work on themselves, and secondly also because men accept नहीं करते हैं ज़्यादातर अपने emotional turmoils. तो women will come with depression or women will come with stress or anxiety, not with the relationship issue per se, but जैसे हम धीरे धीरे explore करते हैं तो we realize that okay, it's the difficult relationship that's leading to this or that's going along with this. Okay, So and it's maybe they mostly don't even women. tell their husbands कि they are going for therapy. Many a times they don't, and many a times they want, but husbands don't come. Because again, I think that is the lack of awareness वाला part कि women के लिए फिर भी psychiatric facility avail करना is acceptable. Okay, depression, emotional expression basically women का ज़्यादा acceptable है than men. तो I think वो difference वहाँ आता है. फिर भी awareness अभी बहुत है, तो couples ज़्यादातर के साथ में आते हैं that they both want to work on the marriage. I think मतलब वर्किंग हो या ना तब नहीं हो, वर्किंग कोई वुमन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना. लोग नहीं, कहते उससे हैं कि फर्क नहीं जो पड़ता क्योंकि वर्किंग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है, या कोई कहता है कि हाउसवाइफ है तो उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है. ऐसा नहीं है. सी आई थिंक वर्किंग तो हाउसवाइफ भी है, उसको हाँ. बस पे नहीं मिल रहा है. अदरवाइज तो आई थिंक टाइप ऑफ स्ट्रेस चेंज हो जाता है, पर स्ट्रेस तो आजकल लाइफ में सबको है. ये लाइफ इज जनरली, इफ वी कंपेयर विद 90s 80s, तो लाइफ इज फास्ट पेस्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं, स्ट्रेसेस हैं. लाइक हम लोग रात में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है? मतलब अपने आप से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी बिहेवियर में कोई चेंज आता है? कैसे पता चलता है कि वी आर गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? राइट. तो दो तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पता चल सकता है. एक तो है जो ज़्यादातर के कॉमन पॉइंट है, जब लोगों को सिम्टम्स एक्सपीरियंस होने लगते हैं. सपोज यू आर फीलिंग कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके सिम्टम्स होंगे कि आपको उदास लग रहा है, आपको चिड़चिड़ापन, ज़्यादातर चिड़चिड़ापन होता है, ज़्यादातर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्ट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स लो लग रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आपको लगता है करना बहुत कुछ चाहती हूँ, सोचती हूँ, पर ट्रांसफॉर्म नहीं होता इनटू एक्शन. झगड़े होते हैं रिलेशनशिप में रोज़. तो फर्स्ट पॉइंट तो वो है जब इंडिविजुअल को लगता है कि वो ठीक नहीं फील कर रहा है, चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा है जैसे पहले कर रहे थे. थोड़ा ज़्यादा और बढ़ जाता है तो फिर आपकी भूख, आपकी नींद अफेक्ट होने लगती है. पर मेजरली चिड़चिड़ापन, थकान, जिन चीज़ों को लेके हम एक्चुअली फिजिशियंस के पास चले जाते हैं कि थकान रहती है, तो कुछ कमी हो गई है. तो दैट इज़ द रीज़न कि ज़्यादातर केसेस ट्रीट ही नहीं होते, क्योंकि वो दे गो टू द रॉन्ग डॉक्टर बेसिकली. तो डिप्रेशन में भी और ज़्यादातर मानसिक बीमारियों में भी शारीरिक सिम्टम्स बहुत होते हैं. अच्छा. तो लोगों को ये नहीं पता होता, लोगों को लगता है कि डिप्रेशन कुछ अलग ही फील होता होगा. और दूसरी जो एक ज़्यादातर चीज़ लोगों को लगती है कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ योर कैरेक्टर और विल पावर. अच्छा. तो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं तो, इसका मतलब मैं वीक हूँ, मैं झेल नहीं पा रहा.
हाँ तो ये राइट, तो इससे होता क्या है कि विल पावर ही तो अफेक्ट होती है डिप्रेशन में, या हाँ मानसिक बीमारियों में आपकी विल पावर, आपकी मोटिवेशन ही अफेक्ट हो जाती है। तो जो सफ़र हम्म, कर रहा होता है उसको और बुरा लगता है अगर कोई कहता है कि अरे थोड़ा मोटिवेट हो जा, थोड़ा विल पावर यूज़ कर, यू कैन डू इट। तो यू कांट डू इट बिकॉज इट्स एन इलनेस। तो हाँ पहला तो हाँ वो पॉइंट है, जब आप कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस करने लग गए हैं तो इसका मतलब आपका इन्वायरमेंट में या आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। हम्म, सेकेंडली, अगर आपको अपने स्पाउस के लिए हम्म, वो लव और रिस्पेक्ट नहीं फील होता है जो हम्म, हुआ करता था, हम्म, तो फिर देर इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा अगर आपको झगड़े होते हैं। अच्छा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरी प्रैक्टिस में होता है, अक्सर लोग बच्चे को लेके आते हैं कि बच्चे अच्छा में बिहेवियर इश्यूज हैं या बच्चा हम्म, टैंट्रम्स बहुत कर रहा है। हम्म, एंड व्हेन आई इवेलुएट, तो होता ये है कि आफ्टर 2-3 सेशंस मैं कपल की मैरिटल थेरेपी कर रही होती हूँ, क्योंकि बच्चे में फॉल्ट्स ज़्यादा तब दिखती हैं जब घर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। यस तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन। अगर आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज हैं तो इसका मतलब आपके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही है, बिकॉज किड्स आर वेरी सेंसिटिव। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप जान सकते हैं। और चौथा जो मैं कहूँगी, मुश्किल है करना पर हर कपल को करना चाहिए, दैट इज़ एट द पॉइंट जहाँ आपको लगता है सब ठीक चल रहा है। तो बिकॉज जब सब ठीक चल रहा होता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। अच्छा व्हाई यू शुड नॉट वेट। अच्छा यू शुड नॉट वेट कि सब खराब हो जाएगा उसके बाद उस पर वर्क करेंगे। अगेन एज आई टोल्ड ना, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इट्स नॉट कि जब आपको प्रॉब्लम आ रही है आप तभी हेल्प लें। इट नहीं शुड बी अच्छा लाइक मान लो सब कुछ मेंटेनेंस। अच्छा चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे साइकाइट्रिस्ट के पास जाके कि हम क्यों आए आपके पास? यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में अभी भी प्रिवेंटिव लेवल पे मेंटल हेल्थ की बात ना नहीं अब होती है। स्टार्ट हुई है। लाइक फॉर हाँ एग्जांपल कि मुझे जिम जाना है, ठीक है, हाँ तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपका वेट ज़्यादा है आप तभी जिम जाते हो। आप तो जिम तब भी जाते हो ना जब आप फिट होते हो, हेल्दी होते हो, टू मेंटेन, यस राइट। सेम गोज फॉर योर मेंटल हेल्थ। अच्छा बट अभी अगेन हमने जो फर्स्ट बात करी थी कि स्टिग्मा और अवेयरनेस की कमी है, तो अभी तो हम लोग उस लेवल पे हैं कि हम प्रॉब्लम के बाद ट्रीट कर रहे हैं। ओके But actually, it should be it on a maintenance basis. So how do you do that maintenance? Even I do it regularly. I keep reading those kind of material. I keep doing the programs that I want to do. If a relationship is going good, then how to make it better? That अच्छा can be worked on. अच्छा तो हम बस जाएं साइकेट्रिस्ट के पास बोले वी वांट टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर एंड देन दे विल Bilkul. सजेस्ट सम मेजर्स To the right kind of psychiatrist. अच्छा तो ये वैसे ही होता है क्या जैसा मूवीज में दिखाते हैं आपको बैठा के बात करते हैं? मूवीज में थोड़ा सा रोमांटिसाइज किया हुआ है, हम्म, बट मेरी प्रैक्टिस काफ़ी क्लोज है मूवीज से, आई से। अच्छा मतलब बेसिकली तो आई अगर थिंक आप जा रहे हो साइकेट्रिस्ट के पास तो यू आल्सो हैव टू बी रियली ऑनेस्ट। ज़रूरी नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट माई पेशेंट्स टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगेन ये थेरेपी माइंडसेट होता है। सो इफ़ यू हैव दैट साइकोडायनेमिक बेंड ना, यू नो कि एवरीथिंग नीड्स टू बी एनालाइज्ड इन द थेरेपी। तो अगर पेशेंट ऑनेस्ट नहीं है तो भी इट टेल्स मी समथिंग अबाउट दैट। सो आई डोंट थिंक अच्छा ही हैज़ टू मतलब बी पकड़ लेते कम्प्लीटली हो ऑनेस्ट। if I'm being honest or not. आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना साइकेट्रिस्ट के साथ, अगेन दैट्स व्हाई आई से चूज द राइट साइकेट्रिस्ट जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बने, आपको उससे झूठ बोलने का मन ही नहीं करेगा। हाँ तो क्या मेडिकेशंस उतने इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू थेरेपी? साइंटिफिकली अगर बात करें तो हर डिसऑर्डर में क्या चीज़ इफेक्टिव है, दैट इज़ ऑल देयर, इट्स ऑल साइंटिफिक, नो इट्स किसी के मन से नहीं चलता है। सो अगर हम कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करें, सपोज डिप्रेशन, एनजाइटी, तो द रिजल्ट ऑफ medication and therapy is according to the severity of the illness. तो अच्छा सपोज अगर माइल्ड डिप्रेशन है ना, वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज देर आर सो मेनी डायग्नोसिस इन साइकेट्री। लोगों को बस एक वर्ड डिप्रेशन ही पता है आमतौर पर इतने सारे डायग्नोसिस हैं, और हर डायग्नोसिस में व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क इज ऑल्सो स्पेसिफाइड विद रिसर्च, एंड इट्स अच्छा गेटिंग अपडेटेड एवरी सिंगल डे। बहुत साइंटिफिक रिसर्च होता रहता है साइकेट्री में। तो बेस्ट रिजल्ट इज विद मेडिकेशन प्लस थेरेपी। अच्छा ओके सो उन मतलब दोनों लीव का इट टू योर कंपटीशन नहीं है। साइकाइट्रिस्ट ये मत सोचो कि बस बिल्कुल, मेडिसिन हाँ लेके हाँ भी काम चल सकता है या सिर्फ थेरेपी से भी काम चल हाँ। सकता है।
ठीक है, तो आपने बोला कि हमें थेरेपी लेना चाहिए या मतलब हाँ साइकियाट्रिस्ट के पास बेसिकली जाना चाहिए इफ़ वी फील कि हमारी लाइफ में सब सही नहीं चल रहा है और इवन अगर सही चल रहा है तो भी। ठीक है, और अगर मान लीजिए मेंटेनेंस के लिए भी या यस, अगर किसी की रिलेशनशिप है कोई टॉक्सिक और मे हम्म बी मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि अवॉइड दैट पर्सन, मे बी कट कॉन्टैक्ट विद या दैट पर्सन अगर मतलब नहीं हो हम्म सकता है। बट मान लीजिए हम्म अगर कोई नहीं अवॉइड कर सकता है ऐसे लोगों से कांटेक्ट जो उनको हम्म मेंटल ट्रॉमा देते हैं, तो हाउ हम्म कैन दे डील विद सच सिचुएशंस? सो मोस्टली आई थिंक परेशान वही चीज़ करती हैं जो ज़्यादा क्लोज होती हैं, राइट? तो राइट। आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस you can't cut off with a toxic person. This is feasible only if it's a toxic neighbor or a toxic friend. It's easier to cut them off, and that decision you should take if it's हम्म। possible. If not, अगर वो बहुत close लोग हैं हम्म। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका खुद के ऊपर वर्क करना। हम्म। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है हम्म। तो मैं कई बार अपने ब्लॉग्स पे भी इस बारे में बात करती हूँ कि वो आपको परेशान कर रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। पर आप उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो हम्म। और यू मीट अ ट्रैफिक जैम। हम्म। हाँ, ट्रैफिक जैम का होना प्रॉब्लमेटिक है, पर हम्म। आप ट्रैफिक जैम में दो चीज़ें कर सकते हो। आप अब्यूज़ कर सकते हो, गालियाँ दे सकते हो, शीशा पीट सकते हो, हम्म। या तो आप गाना चला सकते हो, आपका पॉडकास्ट सुन सकते हो। क्योंकि सो जैम तो वैसे ही रहेगा कुछ भी कर जैम लो। तो वैसे ही रहेगा, या अनटिल एंड अनलेस जैम डिसाइड्स कि उसको नहीं होना है। हाँ। तो और इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप द अदर पर्सन डिसाइड्स कि उसको चेंज होना है। अपने आप तो को ही स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, स्ट्रॉन्ग भी नहीं कहूँगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक जब हम कह देते हैं ना तो वहाँ हम्म। पे अगेन वो कैरेक्टर फ्लॉ वाली बात आ जाती है, जो कि इट्स नॉट ट्रू। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप वीक हो इसलिए आप नहीं कर पा रहे, या ओके। आप स्ट्रॉन्ग हो इसलिए आप कर पा रहे हो। इट्स जस्ट कि आपके अंदर कुछ स्किल्स नहीं है जो आप हम्म। सीख सकते हो। तो ओके, और फॉर दैट स्किल्स। पर्पज यू हैव टू go to the person who can teach you that. It could be a psychiatrist, it could be life coach, जिससे भी आप सीखना चाहें आप सीख लीजिए वो skills, and then you will be able to deal with it better. So ओके it's तो not about strength at all. ओके तो और प्रियंका, आप भी लाइफ कोच भी हो जैसा आपने बताया, तो आप भी हाँ लोगों को ये स्किल सिखाते हो? हाँ। तो जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो क्लिनिक में आते हैं, दे कैन डू हम्म। इट। नाउ ड्यू टू सम लैक ऑफ रिसोर्सेज देयर आर क्लाइंट्स जो नहीं क्लिनिक तक पहुंच सकते, और ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस दैट्स व्हाई आई हम्म। स्टार्टेड राइटिंग, ब्लॉगिंग। सो आई हम्म। हैव अ यूट्यूब चैनल, आई डू ब्लॉगिंग, आई राइट ऑन इंस्टाग्राम वेन एवर आई गेट टाइम। हम्म। सो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑल्सो। हम्म। So the first program that I launched was Better You program. So हम्म। in that I have one full module on how to deal with relationships. Same अच्छा। the thing that you are asking, that अगर कोई relationship close relationship परेशान कर रहा है हम्म। तो उससे उसके साथ हम कैसे डील करें। तो हम्म। धीरे धीरे I'll have more programs, and people are getting help. So if not from me, I'll say आप कहीं से भी help लो, पर सफ़र करने का तो कोई point नहीं है। तो देर इज़ हेल्प अवेलेबल इन ऑल द हम्म। फॉर्म्स, इन ऑल द पैकेजेस। आपको हम्म। जो भी अपने लिए ठीक लगता है यू शुड हम्म। ऑलवेज टेक इट, एंड नॉट फील हेल्पलेस कि नहीं कुछ नहीं हो सकता एंड आई हैव टू सफ़र। सो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। हम्म। हम्म। अब तो ऑनलाइन भी हेल्प है, तो यू कांट से कि मेरे बिल्कुल। पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। या मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वीडियो कंसल्ट्स करते हैं, अच्छा। क्योंकि थेरेपीज इज समथिंग दैट कैन बी डन ओवर वीडियो। अच्छा। अच्छा प्रियंका, इफ अ पर्सन हु हम्म हर्ट यू इन द पास्ट हैज रियलाइज देयर मिस्टेक कि हम्म हाँ मैंने गलत किया था, एंड नाउ दैट हम्म पर्सन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन, तो शुड यू लेट देम हम्म इन? ओके, तो ये पहला तो इस पे डिपेंड करता है कि उस पर्सन की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस थी। फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल, हम्म। हम्म। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टेल कि ओके टॉक्सिक रिलेशनशिप है मदर इन लॉ के साथ। तो हम्म। आई विल से कि इफ इन द पास्ट शी हैज़ हर्ट यू देन हम्म। एंड यू हैव वर्कड ऑन इट, आई एम अज्यूमिंग कि आप उस पर काम कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो पास्ट को लेकर चलने का कोई पॉइंट नहीं है, हम्म। बिकॉज इट्स यू आर नॉट लिविंग इन द पास्ट।
You have to live in the present, and you can't keep doing future projections also based on the past. Okay. So, but having said that, you have to maintain a boundary. तो not allowing somebody in your life, तो आप केव में तो नहीं रह सकते. That way you will cut off everybody. Yes. And if you need to cut off so many people, it means there is a problem in you. You need to work again on yourself, your fears. But अगर आप किसी को allow कर रहे हैं अपनी life में back, that does not mean you are giving him the right to hurt you again. So if you have worked on the past and how you are going to deal with situations, आप उसके साथ comfortable हैं, तो respectfully आप अपनी boundaries set कर सकते हैं. Okay, मतलब we can let them in. Yeah, we should usually let people in our lives. World is usually a beautiful place. अगर खुद पे काम करें तो चीज़ें better हो सकती हैं. और खुद पे काम हम अपने आप नहीं कर सकते. You would suggest going to a psychiatrist only. हाँ, psychiatrist, life coach, क्योंकि देखिए अपने ऊपर it's like जब आप डूब रहे हो और आपको तैरना नहीं आता, तो आपको कुछ तो सहारा चाहिए. कई लोग हैं जो उसमें भी निकल के आ सकते हैं, बट क्या आप में उतना मोटिवेशन है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. बट इफ़ इट इज़ समथिंग जो एक इलनेस लेवल पे है, सपोज या तो आपको डिप्रेशन है या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स बेटर टू टेक हेल्प. अच्छा, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ, आई कैन रीड एंड गेट हेल्प. तो मतलब ये एक लेवल तक ही आपकी हेल्प कर सकता है. हाँ, बिल्कुल. आई थिंक जो एक कोच के साथ काम करने का एक अलग तरीका होता है, बिकॉज देन एक तो फोकस्ड आपको गाइडेंस मिलता है, प्लस जो चीज़ आप में लैकिंग है, आप उस सिचुएशन में इसलिए हो क्योंकि आप हेल्पलेस फील करते हो, राइट? आपको लगता है आप नहीं निकल सकते. तो वो बुक पढ़ के आपको चीज़ समझ तो आ जाएगी, पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. तो आई थिंक वो समझने से इम्प्लीमेंटेशन का जो रास्ता है, वो एक गाइड, एक कोच आपका हाथ पकड़ के करा सकता है. ओके. अच्छा प्रियंका, ये बताओ आप हमें कि अभी तक के आपके करियर में या वंस यू स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस, आपकी सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरी क्या रही है? ओके, तो एक जो चीज़ सरप्राइजिंग भी लगती है और मुझे अच्छी भी लगती है कि इस प्रैक्टिस से आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन. क्योंकि मैंने लाइफ को इतने सारे नज़रियों से देखा है दूसरे लोगों के थ्रू, मेरे क्लाइंट्स के थ्रू, कि आई हैव बिकम वेरी नॉन, होना भी होता है, साइकेट्रिस्ट हैव टू बी नॉन जजमेंटल, बट एज अ पर्सन there is nothing that shocks me. I have acceptance for almost all, and very non-judgmental, and बहुत सारी I feel grateful कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बिना फेस किए उस नज़रिए से देखने को और समझने को मिल जाती हैं. तो मैंने कभी ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि किसी प्रोफेशन में जाकर मुझे उसमें से ज़्यादा मिलेगा देन आई विल गिव टू द पीपल. बट आई थिंक it's a circle, so they make me better, I make them better. It's like I feel very blessed. It has become a passion for me. तो वो जो वर्क की तरह था, पर आई नेवर न्यू कि मेरा टेम्परामेंट और पैशन भी वही था. तो it fulfills me. I feel very good after working. तो प्रियंका, आप जाते जाते हमें एक पार्टिंग एडवाइस या समरी बोले, वो बता दीजिए एक बार. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो समझिए, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मिनिमाइज मत करिए, डिनाई मत करिए कि नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज और ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा रनिंग कर लूँगी ठीक हो जाएगा, या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लूँगी ठीक हो जाएगा, स्पा चली जाती हूँ ठीक हो जाएगा. तो क्विक फिक्सेस मत करिए. आई थिंक अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ओके, आई एम सफरिंग, इट्स नॉट यूजुअल ऑफ मी. जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपनी यूजुअल सेल्फ नहीं हो, तो कुछ प्रॉब्लम है, तो जस्ट टेक हेल्प, टेक प्रोफेशनल हेल्प जब भी पॉसिबल हो. तो सफ़र मत करिए, प्लीज़ टेक हेल्प जहाँ से भी आपको फीजिबल लगती है, और सब कुछ खुद से मत करने की कोशिश करिए क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है. राइट. ओके, तो प्रियंका, हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू डिजिटली? मैं इंस्टाग्राम पे एज बिब्स एंड ब्रेन्स अवेलेबल हूँ. दे कैन ऑलवेज DM मी. काफ़ी लोग पूछते भी हैं अगर कोई क्वेरीज है तो.
I have a YouTube channel by the name of Dr. Priyanka Yadav, और I try to put in mental health related stuff उस पे. अच्छा. और my email ID is on the Instagram account. I have my yeah, they can subscribe to my newsletter. तो अच्छा. whenever I write, I do some program, उस पे update ज़रूर होता है. Thank you so much, Priyanka, for joining us and for sharing your knowledge with our listeners. Thank you, Maitri, for having me here. तो बोलो भाई, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो. गो टू एन एक्सपर्ट, टेक देयर हेल्प और अपनी लाइफ को एक हैप्पी डायरेक्शन में ले जाओ. और सुनते रहो लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी वेलबींग के लिए. और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, या फिर ईमेल कीजिए मुझे littleFixesPodcast@gmail.com पे. सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड स्टे हग टिल नेक्स्ट वेडनेसडे. बाय.